Hello, good morning, friends. How are you? I hope you all are fine. So, I welcome you in the presentation of Class 10 Mathematics. Your chapter is Arithmetic Progress. Dear friends, in a previous session, we have seen what is meant by AP, what is meant by nth term of AP or its formula. Okay. Now, today we are going to study example based on the nth term formula. Okay, so you already studied what is the general form of AP. General form of AP is what? A, first term is A, second term is your A plus D, next term is A plus 2D, comma, A plus 3D, A plus 4D, and so on. So this is a general form of AP. And with its nth term, AN is equal to, what is its formula? N term formula is A plus N minus 1 into D. So this is the formula for nth term, where A is what? Your first term and D is a common difference. Okay. So this is your nth term formula. So you have to remember it. Okay. So using this formula, we are going to study example based on this two topic in this topic. So your example is find the 31st term of the you already seen in an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. इस एग्जाम्पल में क्या दिया है? इस एपी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? 50 टर्म्स. सो देर आर टोटली 50 टर्म्स. ओके, आउट ऑफ विच थर्ड टर्म इज योर 12. 50 टर्म में से आपकी जो थर्ड टर्म है वो आपकी क्या है? 12 है. एंड लास्ट टर्म इज 106. लास्ट टर्म मीन्स विच टर्म? In a given example, we are given there are totally 50 terms. That means your last term is 50 term. So your 15th term is 106. आपकी जो 50वीं टर्म है वो है 106 और थर्ड टर्म हमें दी गई 12. थर्ड टर्म इज गिवन 12 और 15th टर्म A50 is given 106. Then we have to find here 29th term. Okay. Now फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हियर कॉमन डिफरेंस. हमें इसलिए क्या फाइंड आउट करना होगा? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. बाद में हमें 29th टर्म फाइंड करने हैं. वी हैव टू फाइंड हियर 29th टर्म A29. इन एग्जांपल वी हैव गिवन वी हैव टू फाइंड हियर 29th टर्म. ओके, तो हाउ टू फाइंड इट? तो फर्स्ट वी विल फाइंड D. सो ऑलरेडी गिवन योर 13 टर्म इज 12. 13 टर्म हमें 12 दी गई है using the nth term formula. nth term formula already हम लोग पढ़ चुके. But this formula an is equal to a plus n minus 1 into d. Using this formula, put the value those you have known. Okay, तो ये 3 हमें दिया गया है, तो we have to put here n is equal to 3. So a3 is equal to what? a3 means a plus n minus 1 यानी कि 3 minus 1 into d. But a3 is already given 12. So put here a3 is equal to 12 plus a as it. 3 minus 1 is your 2 into d as it. So we get equation 1. तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिलता है 12 is equal to a plus 2d. या हम लोग इसे को ऐसे भी लिख सकते हैं a plus 2d is equal to 12. This is your equation number 1. a plus 2d is equal to 12. Okay. Now again we have given your 15th term. 15th term is given 106. Using this information here, A50 means A plus 50 minus 1 into D. But A50 is given 106. A as it. 50 minus 1 यानी कि 49 into D as it. We get equation 2. तो हमें यहाँ पे equation 2 मिल जाता है. A plus 49 D is equal to 12. Is equal to 12. So your equation 2. तो ये हमें दो इक्वेशन मिल जाते हैं. Now we can solve this two equation for n d. हम अभी ये दोनों इक्वेशन, पहले इक्वेशन आपका 12 is equal to a plus 2d, या इसको हम लोग साइड इंटरचेंज करके भी बोल सकते हैं a plus 2d is equal to 12. Okay. Your second equation is 106 is equal to a plus 49.
इसको हम बोल सकते हैं a plus 49d is equal to 106. Okay, now here we can solve this two equation by here using here elimination method, because these are the linear equation two variables and here equation variables are a and d. ये दोनों जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में और वेरिएबल यहाँ पे ए और डी है. ओके, नाउ वी कैन सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड because already in this two equation coefficient of a are already equal, so no need to multiply this equation by any non-zero constant number. ये दोनों इक्वेशन में जो ये है उसका कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, 1 1 है, तो इसलिए इक्वल है. ओके, तो क्या करना है, we can and both have same sign plus, so we can subtract this equation. We can subtract equation 1 from 2 here, 2 from 1. Okay, now we can subtract here equation 1 from equation 2. हम क्या करेंगे, हम लोग सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सेकंड इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है आपका है a plus 49d, उसमें से ये इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड आपका है a plus 2d, माइनस दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट में लेना है, माइनस साइन है, ब्रैकेट में a plus 2d. राइट साइड में राइट का सब्ट्रैक्शन, इसका राइट साइड आपका 106 है, माइनस इस इक्वेशन का राइट साइड आपका 12 है, यानी कि 106 माइनस 12. ओके, नाउ हियर a plus 49d एज इट, दिस a plus 49d आपका जो है एज इट है. अभी इस ब्रैकेट को माइनस साइन से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका दोनों का साइन चेंज होता है, सो इट बिकम्स माइनस a और माइनस 2d. ओके, और राइट साइड में आपका सब्ट्रैक्शन होगा, 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 94. नाउ सी हियर दिस प्लस है माइनस है कैंसल, दिस 49d माइनस 2d, 49d में से 2d माइनस किया तो वी गेट हाउ मेनी d, 47d is equal to 94 and we get this equation, 47d is equal to 94. Okay, now we can transfer this 47 from left side to right side. राइट साइड में ट्रांसफर करना है, 47 जो है लेफ्ट साइड में d को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ट्रांसफर करने के बाद राइट साइड में वो डिवाइड करेगा, सो वी गेट हियर d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47. 47 का टेबल 1 2 तक तो आपको आता ही है ना, आ सकता है. सो 49 1 जा 1, 49 2 जा 94, सो वी गेट हियर d इज इक्वल टू 2. तो हमें d का वैल्यू मिल जाता है 2. So we get d is equal to 2. That means here common difference is 2. Okay. So now we again find the value of a here. Now put the value of d is equal to 2. Maybe in equation 1 or maybe in equation 2. किसी एक equation में put करना है d का value और a का value find out करना है. So in this equation 1 में या 2 में भी put कर सकते हैं आप लोग. So we will put here d is equal to 2 in equation 1. Equation 1 में put करेंगे. तो आपका equation 1 क्या था? 12 is equal to a plus 2d है, उसमें d का वैल्यू 2 पुट करना है, this 12 as it, a as it, this 2 as it into d का वैल्यू 2. so this 2 plus 2 become 4. ये हम लोग आगे इसे लिख सकते हैं, 12 is equal to a plus 2 into 2 is 4. now transfer this 4 from left side to right side, right side to left side. This can be written as 12 minus 4 is equal to a, and 12 minus 4 means 8 is equal to a, या a is equal to 8. So we get the value of a inside. तो हमें इसी तरह a का वैल्यू मिल जाता है 8. We get the value of a is equal to 8. तो हमें यहाँ पे a का वैल्यू मिल गया 8, a is equal to 8 and d is equal to your 2. Okay. Now we want to find here 29th term. 29th term. Okay, here your 29th term using the n term formula, a plus in bracket n minus 1, n means यहाँ पे 29 है, 29 term हमें find out करना है, so 29 minus 1 into d as it. Okay, so ये 29 is equal to a का वैल्यू हमने find out किया 8, put here 8. this 29 minus 1 becomes 28 into d का वैल्यू 2. simplify it, so is equal to this 8 as it, 28 into 2 it becomes 56. now 8 plus 56 becomes 64, so we get your 29th term is 64. so therefore
29th term is a 64. Okay, so in this way we will find, if you are given any two term, then we will find any term. Okay, now friends, we are going to study next example. Your next example is, if third and the ninth term of AP are 4 and minus 8. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमें दो टर्म दी गई. विच आर द टू टर्म्स? थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज माइनस 8. ओके, नाउ विच टर्म ऑफ द एपी 0? तो हमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 0, इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी. इस एपी में हमें दो टर्म दी गई है. क्या कौन सी? विच आर द टर्म्स? हियर योर थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज माइनस 8. तो गिवन में हम पहले लिखना है, थर्ड टर्म A3 इज 4, नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू माइनस 8. ओके, नाउ अभी हमें विच टर्म ऑफ AP 0, यानी कि कौन सी टर्म 0 होगी, ये निकालने के लिए हमें A और D की वैल्यू पता होना जरूरी है. तो इसलिए पहले हम लोग ये गिवन इंफॉर्मेशन से A यानी कि फर्स्ट टर्म एंड D यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP 0, तो हम nth मान देते. सपोज nth टर्म ऑफ AP 0. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n इफ an इज 0? nth टर्म 0 है ऐसा मान के इनकी वैल्यू हम लोग बाद में फाइंड आउट करना है. ओके, तो हाउ टू फाइंड इट? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड हियर. नाउ यूजिंग द nth term formula, using this nth term formula, your nth term formula is what? an is equal to a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला अभी तक बहुत बार हमने लिखा है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद करना है. nth term of AP, its formula is n is equal to a plus n minus 1 into d. तो ये फॉर्मूला का यूज हमें करना है. तो ऑलरेडी हमें थर्ड टर्म दी गई 4, तो पहले हम लोग थर्ड टर्म क्या होती है AP की थर्ड टर्म, A3 मीन्स व्हाट? A, इसमें n का वैल्यू 3 पुट करना है, A प्लस इस फॉर्मूला में थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करना है. तो पुट हियर n इज इक्वल टू 3, सो A3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 minus 1 into d. Okay, so A3 already given 4, so put A3 is 4 here, plus is equal to A as it, 3 minus 1 is equal to 2 into d as it. So denote this equation by number 1. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट करेंगे. तो इक्वेशन 1 हमें मिल गया है, A plus 2d is equal to 4. ओके, A plus 2d is equal to 4, ये इक्वेशन हमें मिल गया है. A3 is equal to 4 से हमें ये इक्वेशन मिल गया. उसी तरह हमें दिया गया है कि नाइन्थ टर्म इज माइनस 8. इसका यूज करके हम लोग दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. सो नाउ अगेन A9 means put here n is equal to 9 here. तो A9 is equal to A plus n minus 1 यानी कि 9 minus 1 into d. But A9 is given here minus 8. Put here minus 8 is equal to this A as it, 9 minus 1 means 8 into d. So we get here second equation. तो ये second equation हमें मिल गया है. What is your second equation? Second equation is A plus 8d is equal to minus 8. So this is your second equation. Okay, now we can solve these two equation. A plus 2d is equal to 4 और A plus 8d is equal to minus 8. ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करना है. Now we can solve here equation 1 and 2. अभी हम लोग ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों सॉल्व करेंगे. तो अगेन वी विल सॉल्व दिस पेयर ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज इन द गिवन पेयर कोएफिशिएंट ऑफ A आर सेम. ओके, दोनों इक्वेशन में एक कोएफिशिएंट सेम है. नाउ अभी ये दोनों इक्वेशन का हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. ये इक्वेशन 1 जो है ये सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करना है. तो अभी देखिए ये इक्वेशन 2 का मैं जो राइट साइड है पहले मैं लिखता हूँ. यहाँ पे इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्ट किया है. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. ओके, तो 2 फ्रॉम 1 क्या है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से, यानी कि इक्वेशन 1 माइनस 2 किया है. ओके, तो A 2 का 1 का राइट साइड है A प्लस 2 डायरेक्ट,
माइनस उसमें से इसका राइट साइड ए प्लस 8d इज इक्वल टू इसका लेफ्ट साइड है 4, उसमें से इसका ये -4 -8 है, माइनस ऑफ -8, सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाई किया तो ये प्लस 2d एज इट, माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका दोनों का साइन चेंज होता है, तो इट बिकम्स -8 -8d इज इक्वल टू 4, दिस माइनस माइनस बिकम +8, ओके, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है। Now here this a plus minus cancel. This 2d or -8d, it becomes how many d's? -6d. In right side 4 plus 8 is equal to 12. Now transfer -6 from left side to right side. ये ट्रांसफर किया तो -6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस साइड में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो वी गेट व्हाट, d is equal to 12 divided by -6, correct? And this 6 1s are 1, 6 2s are 12. So we get here minus sign, so we get answer -2. So d is equal to -2. तो हमें यहाँ पे d की वैल्यू -2 मिल जाती है, ओके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d is equal to -2 इन इक्वेशन मे बी 1 और मे बी 2, 1 में पुट करेंगे। सो पुट d is equal to -2, पुट हियर d is equal to -2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपका था 4 is equal to, आपका इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 इज योर 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ओके। इसमें d की जगह -2 पुट करना है, तो पुट किया तो ये 4 आपका एज इट, a एज इट, इस 2 एज इट, और d की जगह हमने -2 पुट किया, ओके। सो वी गेट हियर 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। सिंप्लीफाई इट, दिस 4 राइट साइड एज इट, a as it, here 2 into -2, this product is -4. Now transfer -4 from right side to left side, your left side is 4 as it, ये -4 इधर ट्रांसफर किया, it become plus, okay, and right side is equal to a, 4 plus 4 8 is equal to a, यानी कि a is equal to 8, so we get the value of a is equal to 8। तो हमें a का वैल्यू 8 मिल गया है, d का वैल्यू हमें मिला था -2, ओके। अभी ये और डी पता है तो हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकता है ना। तो नाउ बट हमें इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, इन विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी ये हमें फाइंड करना है। हमने nth टर्म मान ले, सपोज an इज इक्वल टू 0 और n मुझसे फाइंड आउट करना है। तो सपोज n टर्म ऑफ एपी हमने 0 मान ले, यानी कि an इज इक्वल टू 0, इधर लेफ्ट साइड में पहले फॉर्मूला लिखना है nth टर्म का, इट्स फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट साइड 0 एज इट। अभी इसमें a और d का वैल्यू पुट करना है और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो a मीन्स 8 प्लस n माइनस 1 एज इट इंटू डी -2 इज इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई इट, दिस 8 एज इट, अभी -2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, पहले n को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू n इज -2n, -2 into -1 become +2 is equal to right side 0, okay। Now here on left side 8 plus 2 become what, 10, minus 2n is equal to 0, okay। Now transfer this to n, अभी फिर से ये जो स्टेप्स है ये स्टेप्स हमें मिली थी, तो लेफ्ट साइड में 8 plus 2 become what, 10 minus 2n, okay, is equal to right side 0। Now we can transfer this 2n from left side to right side, it becomes plus, so we get here 10 is equal to minus 2n become plus 2n, okay। Now n is equal to क्या होगा, ये 2 ट्रांसफर किया तो इधर डिवाइड करेगा, so यानी कि 10/2, so 10/2 is how much, 5, so we get n is equal to 5, so we get answer n is equal to 5। So in this way here your fifth term of the given AP is 0, so therefore fifth term of this given AP is 0, okay friends, are you understand? If you have any doubt then you can contact me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9420439784, okay friends, okay। Now we will see next example. Your next example is, if 17th term of an 17th term of is exceed its a 10th term by 7,
17th term of the AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference. तो पहले एग्जांपल आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना है, उसमें हमें क्या दिया है और क्या करना है, ये हमें जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है तब तक हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान नहीं होता है। तो इसलिए पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग करना है। तो प्रॉब्लम क्या है, 17 टर्म ऑफ द एपी एक्सीड 10th टर्म बाय 7, यानी कि एपी की जो 17 टर्म है वो उस एपी की 10 टर्म से 7 से ज्यादा, एक्सीड यानी कि प्लस 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 7 बाय 7। 17 टर्म, ये जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से, यानी कि ये 17 ये जो टर्म है ये क्या है, उसकी जो 10th टर्म है उससे 7 से ज्यादा यानी कि प्लस 7, यानी कि A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। ओके, इसका मतलब ये A10 इधर ट्रांसफर किया तो A17 दिस A10 यहाँ पे प्लस है राइट साइड में, इधर ट्रांसफर किया तो माइनस होगा, माइनस A10 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब ये 17 टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस 7 है। ये इसका मीनिंग जो है, ये जो 17 टर्म इज 17 टर्म एक्सीड द 10 टर्म बाय 7, इसका मतलब ये 17 टर्म और 10 टर्म इसमें जो डिफरेंस है वो 7 का है। ओके, देन वी हैव टू फाइंड हियर कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड हियर कॉमन डिफरेंस डी। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड इट। सो फर्स्ट राइट डाउन द गिवन थिंग्स। यहाँ पे हमें क्या दिया था, 17 term is exceed its 10th term by 7। इसका मतलब 17 टर्म और 10th टर्म ये डिफरेंस हमें दिया गया है 7। ओके, देन वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी हमें फाइंड आउट करना है। वी नो दैट द nth टर्म ऑफ एपी फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला हमें पता है, इसका यूज हमें करना है। व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, nth term of AP is an is equal to a plus n minus 1 into d। इस फॉर्मूला का यूज इस एग्जांपल में, एक ही फॉर्मूला का यूज हम लोग अभी तक कर रहे हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला अभी तक मिनिमम 10 टाइम्स तो हमने यूज किया होगा, तो अभी तक जो यूज किया है वो फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से रिमाइंड करना है। nth टर्म फॉर्मूला an is equal to a प्लस एन माइनस 1d, उसमें ए होता है फर्स्ट टर्म एंड डी होता है कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे ये 17, पहले हम लोग ये 17 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे एन की जगह 7 पुट करेंगे तो क्या होता है, ए एज इट प्लस एन माइनस 1, यानी कि 17 माइनस 1 इंटू डी। सो ये 17 इज इक्वल टू ए एज इट, 17 माइनस 1 बिकम 16 इंटू डी। सो वी गेट 17 टर्म इज योर 17 टर्म इज ए प्लस 16d। तो आपकी यहाँ पे 17 टर्म क्या है, a प्लस 16d। और हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एपी में 17 टर्म ये डायरेक्टली बोल सकते हैं a प्लस 16d। सिमिलरली और 10 टर्म, 10 टर्म क्या होगी, उसी तरह जैसा 17 टर्म आपका a प्लस 16d है, यहाँ पे d का जो कोएफिशिएंट क्या होता है, ये जो n है 17 उसमें से 1 माइनस किया यानी कि 16d। उसी तरह हम लोग 10th टर्म डायरेक्टली लिख सकते हैं, a प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो 9 इंटू डी। So your 10 term is a plus 9d। Your 10 term यानी कि a10 is equal to a plus 9d। अभी using this given information, क्या information दिया है, a17 minus a10 is equal to 7, ये हमें दिया था, इसमें ये वैल्यू पुट करना है। तो a17 मीन्स a17 हमने फाइंड किया है a plus 16d माइनस a10, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है, माइनस साइन है तो ये दोनों टर्म ब्रैकेट में लिखना है पहले, माइनस इन ब्रैकेट a प्लस 9d इज इक्वल टू राइट 7 एज इट। नाउ ये जो माइनस साइन है सेकंड ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, इसका मतलब माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है मीन्स क्या करना है, दोनों का साइन चेंज होता है। ओके, तो वी विल चेंज द साइन ऑफ सेकंड ब्रैकेट। सो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट, a प्लस 16d एज इट, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया इट बिकम माइनस a और माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ओके, नाउ सी हियर दिस प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, 16d में से 9d गया, वी गेट 7d इज इक्वल टू राइट साइड 7 एज इट।
नाउ 7 ट्रांसफर किया तो d इज इक्वल टू व्हाट 7/7. So d is equal to 7/7 means 1. So we get the value of d is 1. तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है 1. So in this example your common difference is a 1. तो इसी तरह आसानी से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज which term of the AP 3, 15, 27, 39 so on will be 132 more than its 54th term. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में आया है. सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये आईएमपी एग्जाम्पल है. आप लोग इसको अच्छी तरह से करना है. आप लोग इस एग्जाम्पल को फिर से 1-2 बार ट्राई करना है. यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं. ओके. तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में हमें एक एपी दी गई है. व्हाट इज योर एपी? योर एपी इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. एक एपी दी गई है. ओके. अभी क्वेश्चन क्या है? विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म. कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म उस एपी की 54th टर्म से 132 से ज्यादा है. 54 टर्म से ज्यादा. कितने से ज्यादा है? 102 से. जो टर्म है वो यहाँ पे कौन सी टर्म है? विच नंबर ऑफ टर्म इज हियर? सो वी वांट टू फाइंड हियर. नाउ इन दिस एपी ऑलरेडी वी हैव गिवन एपी हियर 3, 15, 27, 39. तो इस एपी से हम लोग ए और डी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. कर सकते हैं नहीं? यस, कर सकते हैं. ये मीन्स व्हाट? योर फर्स्ट टर्म. सो हियर योर फर्स्ट टर्म ए. और क्या एपी में फर्स्ट टर्म आपका 3 है. सो योर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3. नाउ वी वांट टू फाइंड हियर कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस, हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव टर्म. कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म में जो डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. या difference between the any term and its previous term is called the common difference. तो यहाँ पे हम लोग कोई भी टर्म में से उसकी प्रीवियस वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. तो यानी कि a2 माइनस a1 कीजिए, या a3 में से a2 माइनस कीजिए, या a4 में से a3, anyone. ओके. सो वी हैव टू फाइंड हियर कॉमन डिफरेंस d बाय यूजिंग फॉर्मूला d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. जनरली हम लोग a2 में से a1 ही सब्ट्रैक्ट करना है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं. सो योर a2, व्हाट इज योर a2 इन द गिवन एपी? इट इज 15 माइनस a1 मींस a फर्स्ट टर्म, दैट इज 3. 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 12. तो हमें d का वैल्यू मिल गया 12. ये आपका 3 है, d आपका 12 आ गया. ओके. अभी क्या करेंगे हम लोग? पहले इसकी 54th टर्म फाइंड आउट करते हैं. ओके. तो नाउ वी विल फाइंड इट्स द 54th टर्म. So using nth term formula, an is equal to a plus n minus 1 into d. So 54 term निकालना है. So put n is equal to 54, e is equal to 3 and d is equal to 12 here. So an means a 54 is equal to a plus n minus 1 यानी कि 54 minus 1 into d. So put the value now a and d. a का वैल्यू आपका है 3. ये 54 में से 1 माइनस किया 53 इंटू डी का वैल्यू आपका 12 है. सिंप्लीफाइड दिस 3 एज इट. 53 इंटू 12 दिस प्रोडक्ट बिकम 636 और 3 प्लस 36 ये जो जोड़ होता है वो आपका है 639. दैट मीन्स योर 54th टर्म ऑफ दिस गिवन एपी इज योर 639. इसका मतलब हमने यहाँ पे जो 54 टर्म फाइंड आउट किए ये आपकी है 639. Now according to question, क्या क्वेश्चन है? We want to find which term is 132 more than its 54 term. तो हमें वो टर्म जो है क्या होगी? उसकी जो 54 टर्म से 132 से ज्यादा है. सो वो टर्म हमें फाइंड आउट करना है. तो एडिंग 132 टू 54 टर्म वी गेट 132 में ये 54 टर्म ऐड किया 639. So it becomes 771.
इसका मतलब हमें फाइंड करना है कि ये 771 जो है इस एपी की कौन सी टर्म है, विच नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम लोग वो टर्म मान लेते हैं एन और एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड द टर्म ऑफ द एपी विच इज 771। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 771 या फाइंड द टर्म ऑफ द एपी विच इज 771। ओके, और वो हम लोग एन मान लेते हैं और एन का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो सपोज एन का टर्म इज 771 हमने मान लिया और अभी एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो अगेन यूजिंग द एन टर्म फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका किसका वैल्यू है, एन का वैल्यू आपका है 771। ये 771 आपका एन है, ये हमें पता है 3, ए का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू 12 है। पुट दिस वैल्यू हियर, सभी जो वैल्यू पता है वो यहाँ पे पुट करना है और एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो नाउ वी विल पुट हियर an मीन्स 771 इज इक्वल टू ये का वैल्यू 3a प्लस n माइनस वन, एन हमें फाइंड आउट करना है। सो वी कैन राइट n एज इट n माइनस वन इंटू डी 12, सिंप्लीफाई इट। नाउ first transfer this 3 from right side to left side, it becomes what, minus, and we get here 771 minus 3 is equal to right side में आपका n minus 1 into 12, n minus 1 into 12। okay, तो ये आपका right side as it, only we can transfer these 3 from right side to left side, it becomes minus। so 771 minus 3 कितना होता है, 768। so it becomes 768 into right side आपका n minus 1 into 12 as it। okay, now simplify it। now transfer this 12 from right side to left side। यहाँ पे n minus 1 को 12 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इधर साइड हम इंटरचेंज करते हैं तो ऑपोजिट ऑपरेशन दूसरी साइड में करता है। तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऑपोजिट साइड में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो वी गेट हियर this n minus 1 is equal to 768 और 12 यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 12 का टेबल आता है, हम लोग 12 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। या 12 1 जा 1, 12 6 जा 72, 12 6 जा हाउ मेनी, 72। 76 में से 72 माइनस किया, बच जाता है आपका 4, 4 के ऊपर ये 8 यानी कि 48 हो गया। और 12 4 जा 64, sorry 12 4 are 48। so we get here n minus 1 is equal to 64। तो हमें क्या मिल जाता है, n minus 1 is equal to 64। ओके, फिर से स्टेप देखिए क्या किया है, ये 12 ट्रांसफर किया है तो n minus 1 is equal to ये 12 उधर ट्रांसफर किया तो डिवाइड करेगा। सो 768 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे 768 को 12 से डिवाइड करना है। 12 का टेबल 12 1 जा 1, 12 6 जा 72, 76 में से 72 माइनस किया तो आपका बच जाता है 4, उसके ऊपर 8 यानी कि 48 हो गया। और 12 4 जा 48, सो वी गेट हियर 64। तो अभी यहाँ पे मिल जाता है 64, यानी कि n minus 1 is 64। ओके, नाउ ट्रांसफर दिस वन फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, इट बिकम प्लस। सो लेफ्ट साइड योर n as it, right side your 64 as it, and this one become here plus 1। so n is equal to 64 1, 64 plus 1 यानी कि 65। so we get n is 65। इसका मतलब ये टर्म कौन सी होगी, 65 टर्म होगी। so therefore 65 term was 132 more than its 54 term। तो 132 से ज्यादा, 54 से 132 से ज्यादा कौन सी टर्म होगी, 65 टर्म होगी। तो 65th 65 is the term was which is a 132 more than its 54th term। so in this way using this formula, nth term formula, we will find here any term। okay, now one more example। next example is two APs have the same common difference। दो APA दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों में सेम है कॉमन डिफरेंस। ओके, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म एंड 100 टर्म इज 100। दोनों एपी की जो 100 टर्म है उसका डिफरेंस हमें 100 दिया गया है। देन क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म।
तो उनकी जो 1000 टर्म होगी उसमें क्या होगा डिफरेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है। और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म अलग अलग हो गई लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम दिया है, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस सेम दिया है। ओके, तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सपोज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी की हम लोग A1 मान लेते हैं और सेकंड एपी की B1 मान लेते हैं। सपोज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी आर A1 एंड B1। फर्स्ट टर्म की फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म A1, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म B1 मान लिया रिस्पेक्टिवली। एंड कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है और वो हम लोग D मान देते हैं। दोनों बोथ हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू D। नाउ वी विल फाइंड द 100 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी। तो फर्स्ट एपी की 100 टर्म यानी कि A100, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने ये से स्टार्ट किया इसलिए उसका 100 टर्म भी यही सफिक्स सिर्फ 100 टर्म 100। ओके, तो 100 टर्म क्या होगी आपकी A1 यानी कि A मीन्स A1 प्लस 100 n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 इंटू D। सो 100 टर्म A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D। तो योर 100 टर्म क्या होगी फर्स्ट एपी की A1 प्लस 99D, A1 प्लस 99D। उसी तरह 1000 टर्म फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट एपी की, ये सब फर्स्ट एपी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। 100 टर्म मीन्स A1 प्लस 1000, n means 1000 minus 1 into D. So 1000 term means A1000 is equal to A1 plus 1000 में से 1 माइनस क्या है यानी कि 999D। वी गेट इक्वेशन 2। तो ये फर्स्ट एपी के लिए 100 और 1000 टर्म हमने फाइंड आउट की। उसी तरह हम लोग सेकंड एपी के लिए भी 100 और 1000 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड एपी के लिए B100 100 टर्म मीन्स B से स्टार्ट किया इसलिए B सफिक्स है। 100 is equal to B1 plus 100 minus 1 into D. So 100 term is B1 plus 100 minus 1 यानी कि 99D. We can write equation number 3 here. So this is what? This is the 100 term of second AP. उसी तरह 1000 term of second AP. B1000 is equal to B1 plus 1000 minus 1 into D. So 1000 term of the second AP B1000 is equal to B1 plus 1000 में से 1 माइनस किया तो 999D। वी कैन डिनोट दिस इक्वेशन बाय नंबर 4। तो इसी तरह हमें 4 इक्वेशन मिल गए। ओके, अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन है कि दोनों की 100 टर्म में डिफरेंस 100 है। इसका मतलब A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100। फर्स्ट टर्म की 100 टर्म आपकी A100 है, सेकंड आपकी 100 टर्म B100 है, उनका डिफरेंस टर्म 100 है। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें दिया गया है कि A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100। A100 मीन्स व्हाट, फर्स्ट एपी की 100 टर्म, B100 मीन्स सेकंड एपी की 100 टर्म और दोनों का डिफरेंस हमें 100 दिया था। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी गेट हियर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A100 एंड B100 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। A100 आपका है फर्स्ट इक्वेशन से A1 प्लस 99D माइनस B100 आपका B1 प्लस 99D है, लेकिन दो टर्म है इसलिए माइनस साइन है तो ये दोनों टर्म ब्रैकेट में लेना है पहले। इज इक्वल टू 100 हमें दिया था। नाउ अभी क्या होगा, ये 99D ये प्लस है और ये 99D माइनस है, ये कैंसिल हो गया। ओके, ये ऐसे भी आप पहले लिख सकते हैं A1 प्लस 99D, बाद में माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो माइनस B1 माइनस 99D, लेकिन ये प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल, वी गेट A1 माइनस B1। तो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है A1 माइनस B1 इज इक्वल टू राइट साइड 100 एज इट। ओके, नाउ सो वी गेट हियर इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, वी गेट इक्वेशन A1 माइनस B1 इज 100। वी कैन डिनोट दिस बाय इक्वेशन 5। तो हमें A1 माइनस B1 यानी कि फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 मिल गया। दोनों एपी की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 मिल गया, करेक्ट। ना अभी हमें दोनों एपी की 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब फर्स्ट एपी की 1000 टर्म में से दूसरी एपी की 1000 टर्म माइनस करना है, यानी कि A1000 माइनस B1000 हमें फाइंड आउट करना है। A1000 माइनस B1000, A1000 मीन्स व्हाट, A1 प्लस 99D इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में हमने देखा है, माइनस यहाँ पे 1000 टर्म ऑफ सेकंड एपी, ये क्या है आपकी B1 प्लस 99D और दो टर्म इसलिए माइनस साइन। यहाँ पे भी अभी हम लोग सीधे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके फर्स्ट ब्रैकेट एज इट, फर्स्ट आपका A1 प्लस 999D एज इट,
अभी इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज होगा, माइनस b1 और माइनस 990, ये 990 प्लस माइनस कैंसल, वी गेट व्हाट a1 माइनस b1, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है a1 माइनस b1, यानी कि 1000 टर्म का डिफरेंस आपका आता है a1 माइनस b1, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म्स। लेकिन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म यानी कि a1 माइनस b1 हमने इक्वेशन 5 में क्या निकाला है 100। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ये a1 माइनस b1 इज इक्वल टू 100, इक्वेशन 5 का जो वैल्यू है a1 माइनस b1 का वैल्यू 100, ये इस इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट किया तो आपका a1000 माइनस b1000 इज इक्वल टू a1 माइनस b1, but a1 minus b1 is 100, so put here 100. So we get here a1000 minus b1000, a1000 minus b1000 का मतलब दोनों AP की 1000 टर्म का डिफरेंस, and that is equal to what 100. So we get answer here, the difference between their 1000 term is also 100. The difference between the 1000 term of this AP will be 100. Okay, तो इसी तरह हम लोग कोई भी, और यहाँ पे इसका मतलब हमने जो 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया था, ओके, उससे हमने फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 निकाला, 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 निकाला है। इसका मतलब यदि दो एपी में कॉमन डिफरेंस यदि सेम है तो दोनों एपी की सेम नंबर ऑफ टर्म का डिफरेंस जो है वो उतना ही आता है, सेम आता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एनी difference between the terms, same number of terms is a constant here, वो क्या होता है सेम होता है। ओके, तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है आप लोगों को, एक एपी दो एपी आपको दी जाएगी और उनका दोनों का जो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ओके, तो कोई भी 1000 टर्म या 18 टर्म ये डिफरेंस निकालना तो हम लोग जनरली फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस हमने निकाल लिया तो वी गेट डिफरेंस बिटवीन द एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो ये प्रॉब्लम का यूज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। ओके, तो इन दिस वे फ्रेंड्स ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल based on this topic from this your exercise 5.2. If you have any doubt, any problem, okay, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. Okay friends, so I hope you are all understanding. Okay, if otherwise you will contact me. Okay friends, bye, have a good day.